नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल नी फीड्स पे। अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस डायरेक्टली पाने के लिए प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello friends, today I will discuss with you the physical policy and monetary policy. Physical policy राजकोषीय नीति and monetary policy मौद्रिक नीति. I will discuss both these topics in simple way. My motive is to make you aware and make you familiar with these two topics so that you can easily solve the MCQs related to these topics. This will help you in banking, SSC as well as even in UPSC. So let us start with physical policy. Physical policy. राजकोषीय नीति. Physical policy. Our government use two tools, taxation and expenditure in physical policy. Taxation. In Hindi, it is Kararopan. And the second tool is expenditure. Expenditure. Where? This is also called spending. In physical policy, government has two tools, taxation and expenditure. These are two tools in the hands of government. Government uses both these tools to increase aggregate demand. कुल मांग को गवर्नमेंट बढ़ाती है. कैसे? इकोनॉमी में सिचुएशंस आते हैं कि जब इकोनॉमी में डिमांड कम हो, आर्थिक मंदी का सिचुएशन, रिसेशन का सिचुएशन. सपोज देयर इज रिसेशन, आर्थिक मंदी. आर्थिक मंदी मतलब कि डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड इज लेस. पीपुल डोंट हैव एनफ कैपेबिलिटी टू डिमांड. जब डिमांड कम है, देन इस सिचुएशन में व्हाट प्रोड्यूसर विल डू? प्रोड्यूसर विल सप्लाई लेस, सो प्रोडक्शन इज आल्सो लेस. व्हेन प्रोडक्शन इज लेस, then producer will employ less labor to its production unit, then labor is also less. जब लेबर नहीं है तो प्रोड्यूसर जो है उसको वेजेस भी कम देने होंगे. इसका मतलब कि मार्केट में मनी सप्लाई इज आल्सो लेस. These all things are associated with one another. In market, aggregate demand is less. In recession, आर्थिक मंदी के समय aggregate demand जो है वो कम है, तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा. जब डिमांड ही कम है, then producer will hit its production. उसी तरह producer will employ less labor. Less labor means less wages. That means money supply will reduce in economy. This is situation of आर्थिक मंदी, recession. Now what government will do? Government क्या करती है इस केस में? Government uses these two tools, taxation and expenditure, to correct this situation. Recession के situation को correct करती है. How? We have to see how government corrects this situation of recession. Government का main काम यहाँ पर क्या है कि इस एग्रीगेट डिमांड को किसी भी तरह एनी हाउ इंक्रीज करना है. इससे क्या होगा कि ये सारी सिचुएशंस ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी. कैसे? लेट अस सी हियर. टैक्सेशन. गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेशन को, टैक्स डिक्रीज कर देती है. टैक्स डिक्रीज करने से क्या हुआ? जब टैक्स डिक्रीज हो गया तो पीपुल विल हैव मोर मनी. People will have more money
टू स्पेंड, गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ रहा है लोगों को, देन पीपल विल हैव मोर मनी टू स्पेंड. इट मीन्स व्हाट? एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज. कुल मांग जो है वो तो बढ़ गई ना, लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं तो वो ज्यादा खर्च करें. इससे क्या होगा? जब पीपल डिमांड ज्यादा करेंगे तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन भी करेगा. प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस मोर, एंड टू प्रोड्यूस मोर प्रोड्यूसर विल हायर मोर लेबर. hire more labor, then wages, you can say that money supply increases. Production more, then producer will have to hire more labor. More labor means you have to pay wages to labor, so money supply is automatically increased. See what happens if the government reduce taxes. Tax reduce, people will demand more, aggregate demand increase. Aggregate demand increase, it means producer will produce more, hire more labor, give more payment to labor, and consequently money supply increases. This is the chain. Taxation reduction of tax means money supply increases. What will happen after this money supply increases? With this increase in money supply, again the people which have more purchasing power now, उनकी क्रय शक्ति अब बढ़ गई है, then they will demand more. तो ये जो सिचुएशन थी, एग्रीगेट डिमांड जो पहले कम थी रिसेशन में, टैक्स को रिड्यूस करने के बाद एग्रीगेट डिमांड यहां बढ़ गई ना. तो इन दिस वे गवर्नमेंट यूजेस टैक्सेशन पॉलिसी, करारोपण करके गवर्नमेंट इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड. गवर्नमेंट ने क्या किया कि इकोनॉमी के कुल मांग को बढ़ा दिया. रिसेशन में एग्रीगेट डिमांड कम था, नाउ गवर्नमेंट यूजेस टैक्सेशन पॉलिसी एंड अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई. तो ये सिचुएशन करेक्ट हो गई. ठीक. एक्सपेंडिचर पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी का कैसे यूज करती है ये हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में करती है. सपोज करो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में वो खर्च कर रही है. निर्माण, किस चीज का निर्माण? रेल, रोड, ब्रिजेस, एनीथिंग विच जनरेट्स डिमांड. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है. एक्सपेंडिचर कर रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट हैज टू एम्प्लॉय लेबर, सेम प्रोडक्शन इंक्रीज, गवर्नमेंट विल हायर लेबर, गवर्नमेंट हैव टू पेमेंट दिस लेबर्स, सो वेजेस विल राइज, कंसिक्वेंटली मनी सप्लाई इंक्रीजेस. तो अभी हमने ये देखा कि टैक्सेशन पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, इन दोनों का यूज गवर्नमेंट क्या करती है कि मार्केट में एनी हाउ मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है. मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, मनी सप्लाई होगा, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, क्रेडिट आएगी, देन पीपल विल डिमांड ना. इफ यू हैव एबिलिटी टू पे, देन यू विल डिमांड. सो गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस टू टूल्स, टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, गवर्नमेंट व्हाट गवर्नमेंट डज? गवर्नमेंट इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड. कुल मांग को गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया. तो दिस इज फिजिकल पॉलिसी. क्वेश्चंस जो एसएससी में आते हैं, वो पहला क्वेश्चन एसएससी या कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये देगा आपको कि व्हाट आर द टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी. देन दीज आर टूल्स. ऑप्शंस में दे देगा टैक्सेशन, बी में एक्सपेंडिचर, सी में ए एंड सी बोथ, एंड डी में नन ऑफ द अबव. और इसमें कोई भी सी डी ऑप्शन में कोई अदर ऑप्शंस भी रहेगा. तो दीज आर टू टूल्स, टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी. एक तो क्वेश्चन ये हो गया. उसके बाद फिजिकल पॉलिसी में ये आता है कि क्वेश्चंस कि गवर्नमेंट क्या करती है, व्हाट द गवर्नमेंट विल डू. इसको ऐसा देखते हैं. व्हाट गवर्नमेंट विल डू टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड. क्वेश्चंस ये रहेगा
कि टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड व्हाट द गवर्नमेंट डज। एग्रीगेट डिमांड, कुल मांग को, इकोनॉमी में क्या था, रिसेशन था, कुल मांग को बढ़ाना है, डिमांड बढ़ेगा तभी वो रिसेशन दूर होगा। गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड व्हाट द गवर्नमेंट डज। अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट टैक्स को रिड्यूस करती है, देखा ना, गवर्नमेंट टैक्स को रिड्यूस करती है। यहां क्या देखा कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यय करती है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है गवर्नमेंट, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। यहां हमने देखा गवर्नमेंट टैक्स डिक्रीज कर रही है, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, उससे डिमांड बढ़ रहा है। तो यहां पर पूछ रहा है टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड व्हाट द गवर्नमेंट डज। ऑप्शन में रहेगा डिक्रीज टैक्सेस, बी इंक्रीज एक्सपेंडिचर, सी increase taxes, and D both A and B। इस तरह का ऑप्शंस रहेगा, या कुछ और भी रह सकता है, लेकिन अभी ये जो हमने पढ़ा इसमें यही दिख रहा है ना, टैक्स डिक्रीज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, तो ये दोनों ऑप्शंस में मिल गए ना। गवर्नमेंट विल डिक्रीज टैक्सेस एंड गवर्नमेंट विल इंक्रीज एक्सपेंडिचर टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड। तो फिजिकल पॉलिसी में जो क्वेश्चंस हैं वो यही है, टूल्स के ऊपर, व्हाट आर टू टूल्स, टैक्सेशन पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। और टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड, कुल मांग को बढ़ाने के लिए व्हाट द गवर्नमेंट विल डू, तो द गवर्नमेंट डिक्रीज टैक्सेस एंड गवर्नमेंट इंक्रीज एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, मेनली यही दो बेस है क्वेश्चंस को आने के लिए। तो ये फिजिकल पॉलिसी हुई, लेकिन ये फिजिकल पॉलिसी में ये जो थियरी है ये कीनेसियन इकोनॉमी ने दिया था। कीन्स साहब ने ये कहा कि ऐसे गवर्नमेंट करती है, डिमांड बढ़ाने के लिए टैक्स को डिक्रीज करती है और एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करती है, तो डिमांड अपने आप इकोनॉमी में बढ़ जाता है। कीनेसियन थ्योरी है ये। लेकिन कीनेसियन थ्योरी को न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने अपोज किया। कीनेसियन इकोनॉमिस्ट का कहना था कि टैक्स इंक्रीज, एक्सपेंडिचर, टैक्स डिक्रीज, एक्सपेंडिचर इंक्रीज। कीनेसियन व्यू पॉइंट। फिजिकल पॉलिसी में यही है, कीनेसियन इकोनॉमिस्ट ने ये व्यू पॉइंट दिया, कहा कि इफ गवर्नमेंट डिक्रीज टैक्सेस and increase its expenditure, then automatically aggregate demand will increase and the situation of recession get corrected। ये कीनेसियन ने व्यू पॉइंट रखा। लेकिन न्यू क्लासिकल इकोनॉमी ने इस थियरी को कहा कि नहीं, ये थियरी जो है ये मैं नहीं मानता हूं। इनका कुछ और अपना व्यू पॉइंट था। इन्होंने ये क्या कहा कि अगर गवर्नमेंट टैक्स डिक्रीज करती और एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है, तो ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, ये गवर्नमेंट कहां से लाएगी ये एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसे? ऑब्वियसली द गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम समवेयर। उनका कहना था कि गवर्नमेंट उधार लेगी कहीं से, बॉन्ड मार्केट से या समवेयर एल्स, पब्लिक से। तो जब गवर्नमेंट बोरो लेगी, उधार लेगी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट विल गेट हायर। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर जो है वो बढ़ जाएगा। अब आप देखो कि गवर्नमेंट चाह रही है यहां पर क्या, यहां पर गवर्नमेंट का मेन मकसद था, गवर्नमेंट हैज टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, कुल मांग को बढ़ाने। लेकिन नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इस थियरी को, कीनेसियन थियरी को अपोज कर रहे हैं, ये कह गए कि गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस कर दिया, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया,
तो गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे? ऑब्वियस गवर्नमेंट बोरो करेगी। गवर्नमेंट बोरो करेगी, जब मार्केट से फंड लेगी तो गवर्नमेंट हैज टू पे सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह से क्रेडिट की जो मांग है, डिमांड ऑफ क्रेडिट, बोरो का मतलब क्या हुआ? डिमांड ऑफ क्रेडिट, डिमांड ऑफ क्रेडिट इंक्रीजेस। जब डिमांड ऑफ क्रेडिट इंक्रीज हो गई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया। तो ये यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ गया, इससे क्या हो रहा है, लोगों में, पब्लिक जो लोग हैं उनमें भी तो एक टेंडेंसी आएगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में, पब्लिक या कॉर्पोरेशन जो भी है, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा सेविंग पे ध्यान देगी। पीपुल विल सेव मोर टू अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब पीपल सेव करने लगेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, निवेश जो है कम हो जाएगा। when निवेश कम हो जाएगा तो इसका असर एग्रीगेट डिमांड पर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट कम, इसका मतलब प्रोडक्शन कम। प्रोडक्शन कम का मतलब प्रोड्यूसर विल हायर लेस लेबर। लेस लेबर का मतलब मनी सप्लाई रिड्यूसेस। जब मार्केट में फिर मनी सप्लाई रिड्यूस हो गई, पैसा है ही नहीं, तो पीपल डिमांड भी कम करेंगे, एग्रीगेट डिमांड कम हो गया। तो यहाँ गवर्नमेंट की जो कोशिश थी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करने की, वो तो यहाँ हुआ नहीं, एग्रीगेट डिमांड तो यहाँ कम हो गया। तो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ये जो केनेजियन व्यू पॉइंट था, इसको अपोज करते हैं कि नहीं, फिजिकल पॉलिसी में अगर गवर्नमेंट टैक्स डिक्रीज करती है और एक्सपेंडिचर करती है तो गवर्नमेंट को समवेयर से बोरो करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट बोरो करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट, डिमांड ऑफ क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगी, पीपल वांट टू सेव मोर, और जब पीपल सेव करेंगे ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट विल डिक्रीज। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा तो प्रोडक्शन पे असर होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और प्रोडक्शन कम होगी तो लेबर की जरूरत नहीं होगी प्रोडक्शन यूनिट में, तो लेबर कम एम्प्लॉय करेंगे प्रोड्यूसर। जब लेबर कम एम्प्लॉय करेंगे तो लेबर को वेजेस भी कम मिलेगी, तो लोगों की परचेजिंग पावर अल्टीमेटली अफेक्ट होगी, और मार्केट में जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है, लिक्विडिटी जो है, तरलता जो है, वो कम हो जाएगी। इससे ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का मकसद था एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना, लेकिन नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा कि अगर आप ये दोनों टूल्स को ऐसे यूज करोगे तो एग्रीगेट डिमांड और कम भी हो सकता है। तो ये डिबेटेबल टॉपिक है, दोनों का अलग अलग व्यू पॉइंट है। फिजिकल पॉलिसी में होता यही है, देयर आर टू टूल्स, टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। केनेजियन व्यू पॉइंट को अगर हम देखें तो केनेजियन कहता है कि by decreasing taxes and by increasing expenditure government can able to increase aggregate demand। कुल मांग बढ़ा देगी। कुल मांग अगर बढ़ जाएगा, when people will demand more then producers produce more, production will increase। when production will increase, producer will hire more labor। when producer will hire more labor, producer have to pay them wages। in this way money supply, credit will increase in market, and with this increased credit people will demand more, so aggregate demand will increase। तो केनेजियन व्यू पॉइंट ये है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो आप लोगों से शेयर करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप लोगों तक पहुंचेगी।